So very good morning, dear student. Welcome back in today's class. So dear student, as you know that in the previous class we discussed about the different five classes of microbes, and then we discussed about the some steps by which we can prevent the spreading of diseases, and we also discussed about the usefulness and harmfulness of fact of microbes. Then we discussed about what about the communicable and non-communicable disease and the different agents of spreading a disease by which the disease can be spread from one person to another person. In that we discuss about the air, water, food, and we discuss about the pathogens and the vectors which carry the disease causing germs or the pathogens. So now in today's class we are going to discuss about the new topic, that is the spoilage of food and its preservation. As we know that, everybody we know that we come to know that by discussing about the different types of microbes. That is, the microorganisms are the basic things, or you can say that the microbes are the responsible for the spoilage of the different food items like clothes, leathers. Means the agents or the agency which is behind the spoilage of these things are what? Microbes. These microbes are the responsible positive organisms for what? The spoilage of food. So the thing is, the main question is that कि बिल्कुल हमारे दिमाग में क्लियरली आ जाता है कि हाँ ठीक है, ओके, नाउ इट्स द माइक्रोब्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग स्पॉइलेज or for food poisoning. But how do we come to know that food is getting spoiled by the microbes? What are the indications? आप कैसे पहचानोगे कि ये खाना जो है वो खराब हो गया है, या इसको ना स्पॉइल हो गया, इसमें माइक्रोब्स ग्रो करने लग गए हैं, ये खाना जो है वो खाना खाने के लायक नहीं है. So there are some indications, some ways, yeah, you can say that some clearly indications we can come to know or we can observe in food items if the microbes are growing at food material. So first thing is that the formation of the bubbles. उसमें bubbles ना गैस bubbles बनने लगेंगे. Second thing, it gives bad smell, foily smell ना बदबू सी आने लगेगी उस खाने में. सरफेस डिस्कलरेशन मीन्स उसकी सरफेस के ऊपर जो है कलर बन जाएगा, डिस्कलरेशन आ जाएगा, वाइट कलर आ जाएगा या फिर उसकी कलर की लेयर बन जाएगी. सो सरफेस डिस्कलरेशन, दिस बैड स्मेल्स, बैड टेस्ट, सोर इन टेस्ट, खट्टा सा हो जाता है, बैड स्मेल सी आने लगती है, उसमें गैस फॉर्मेशन होने लगता है. दीज आर द क्लियरली इंडिकेशंस अबाउट दैट स्पॉइलेज, दैट अबाउट द स्पॉइलेज फूड और एनीथिंग दैट फूड मटेरियल इज नॉट फिट फॉर द कंज्यूमशन और नॉट फॉर द यानी कि वो खाना, वो फूड मटेरियल वो बिल्कुल क्या हो गया है, स्पॉइलेज हो गया, उसमें माइक्रोब्स ग्रो कर गए. दैट फूड मटेरियल इज नॉट फिट फॉर कंज्यूम. आप उसको खा नहीं सकते हैं, उसमें माइक्रोब्स हो गए. वो इफ़ यू आर टेकिंग सच टाइप ऑफ फूड मटेरियल्स यू आर द विक्टिम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग. Okay, so microorganisms spoil the food, clothing and leathers. Let us study more about their harmful action. Microbes generally कैसा क्या, how this happen? Because these microbes release or secrete what, some kind of enzymes in that food items or food materials, and that items is known as what, amines, and which gives the smelly what, bad smells or smelly product. वो उस खाने को या प्रोडक्ट को स्मेली बना देता है, उसमें बदबू आने लगती है. क्यों? क्योंकि वो कुछ एंजाइम्स, एमाइंस जिसको अपन कहते हैं, वो एंजाइम्स उस खाने में रिलीज़ करता है. उसके नंबर्स बढ़ेंगे तो वो एंजाइम्स रिलीज़ करेगा, सीक्रेट करेगा, वो उसके साथ मिक्स होगा. इट गिव्स स्टार्ट बैड स्मेल, डिस्कलरेशन एंड वाटर, शोर इन टेस्ट, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, उसमें एयर बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे. नाउ जस्ट लाइक दिस सीजन, समर सीजन, इसमें खाना काफ़ी जल्दी खराब हो जाता है. आप कोई भी सब्जी है उसको रख दो और नाइट सुबह बिल्कुल उसको बैड स्मेल लगने लगेगा, उसमें से बदबू आने लगेगी, उसमें बबल्स होंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा. सो दिस इज इंडिकेशन अबाउट दिस बॉडी. सो फॉर दैट मीन्स फॉर दैट कि अब what are the methods by which we can
अवॉइड दिस थिंग्स, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को अपन कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, सो दैट प्रॉब्लम इज रिजॉल्व विद मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. So preservation means is a method by which, the process by which we can avoid, we can stop the food by we can protect or prevent the food by spoiling. Okay, उसको स्पॉइलेज होने से उस फूड प्रोडक्ट को बचा सकते हैं. वो मेथड जो है वो आपका प्रिजर्वेशन, चाहे वो फ्रीज में आप रख दो या कोई दूसरा मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हो. दूध को गर्म करके रखते हैं. So these are the methods by which we can preserve the food battery for a long time. Now that is why the spoiled food emits the bad smell, taste and changed color. Let us study the common methods for prevent the food spoilage to preserve for the long duration. First one is chemical method. As this suggests, this method is chemical methods. So this chemical method means it's a method of preservation of food in which we use some special kinds of the chemicals like sodium benzoates. We use for the preservation of the food items. The salt, sugars, vinegar, acetic acid, and edibles, oils check the growth of microorganisms. Just like you see salting, हम फूड मटेरियल में सॉल्टिंग करते हैं, सुगरिंग करते हैं, उसको शुगर के साथ में मिक्स करते हैं, सॉल्ट के साथ, नमक के साथ में मिक्स करते हैं. जस्ट लाइक हमारे घर में ना अपन अचार या पिकल्स बनाते हैं तो उसमें ऑयल ऐड करते हैं ताकि ऑयल से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो न करे. उसमें कुछ एसिडिक एसिड, सिरका जिसको अपन कहते हैं ना, विनेगर कहते हैं, उसको अपन ऐड करते हैं ताकि वो लंबे टाइम के लिए उसमें जैम्स या पिकल्स ये सब जेलीज बनाते हैं तो उसमें सोडियम बेंजोएट केमिकल अपन यूज़ करते हैं जो क्या करता है उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए 6-6 महीने भी पड़ा रहता है ना, तो वो स्पॉइल नहीं करता है. So that is called chemical methods. Therefore, they are called preservatives. And these all materials, what are? This is sugar, salt, acetic acid, vinegars, या फिर sodium benzoates are known as what? Preservatives. Chemicals which you use to preserve the food material is called what? Preservatives. Okay. Now we add the salt or the acid preservatives to the pickles to prevent the attack of a microbe. Sodium benzoate, as I told you that sodium benzoate. The sodium benzoate is different type of chemicals which mix with the pickles and the jellies and the sauce, chutney ये सब बनाते हैं, उनमें मिक्स करते हैं ताकि लंबे टाइम के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट. सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, सोडियम बेंजोएट है, ये कुछ केमिकल्स है जो अपन उनके साथ मिक्स करते हैं ताकि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उसको अपन स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन प्रिजर्वेटिव. सो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉमन व्हाट फूड या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स या फूड प्रिजर्वेटिव्स. तो आप एग्जांपल में क्या करोगे? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट. ओके. These are used in the jams and species to check their spoilage and preserve them. So here are the descriptions of some chemical methods of the preservation. First, that we will discuss about salting. Salting and soothing. तो फर्स्ट वन सॉल्टिंग. सॉल्टिंग यानी कि जो भी फूड मटेरियल है उसको सॉल्ट के साथ में मिक्स करना. जस्ट लाइक आपने जनरली यू ऑब्जर्व एट योर होम्स व्हेन योर मम्मा प्रिपेयर द पिकल्स और अचार फॉर योर फैमिली. तो फर्स्ट क्या स्टेप होता है? फर्स्ट क्या स्टेप होता है कि जो अनराइप मैंगो होते, कच्चे आम होते हैं या कैरी होते हैं, उसको काट के वो सॉल्ट के साथ में मिक्स करके एक दूध के लिए रखते हैं ताकि उसमें से जो भी वाटर का कॉन्टेंट है वो उससे रिलीज हो जाता है. ओके. एंड दिस वाटर इज मॉइस्चर.
फिर फूड मटेरियल में मॉइस्चर जितना रहेगा ज़्यादा रहेगा उतना ही वो फूड मटेरियल ज़्यादा जल्दी ही स्पॉइलेज होगा, क्योंकि माइक्रोब्स जो ग्रो कहाँ पे करते हैं, ह्यूमिड प्लेसेस पे, यानी जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है. So common salt takes away the water and the moisture from the food. So it has been used to preserve the meat and fish for the ages for a long time period. Meat and fish are covered with the dry salt. Salting is also used to preserve the amla, the Indian gooseberries, जिसको कहते हैं ना, raw mangoes, turmeric यानी इमली, ये सबको ना सॉल्ट के साथ में मिक्स करके रखते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक प्रिजर्व रहे. देन सुगरिंग और प्रिजर्वेशन बाय द शुगर, सैप शुगर के साथ में मिक्स करके रखते हैं. द शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दैट स्पॉइल द फूड. ये भी सेम एक्शन का वो काम करता है कि शुगर को मिक्स करते हैं. शुगर भी क्या करता है, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है. द शुगर इज यूज्ड टू प्रिजर्वेटिव्स इन अ मुरब्बा, jams, jellies and squashes. Preservation by the oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents the spoilage of pickles because of oil cuts of the air contact. Because germs कब आएंगे, जब एयर के टच में होगा, एयर के कांटेक्ट होगा. एयर टाइट यदि डिब्बे होते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं तो उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते. जैसे आप उसको ओपन कर लेते हो तब इट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड एयर इज full of germs. When these germs are come in contact with that food material, they start multiplication, replications, increase their numbers, and then simply they spoil their food. So the main thing is that हमारा क्या मेन मकसद, हमारा मेन उद्देश्य एम होना चाहिए कि एयर का कांटेक्ट कट कर दे. तो उसके लिए हम क्या है ना, अचार में भी क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं ताकि एयर के कांटेक्ट में नहीं हो. आपके घर में देखा यदि अचार में ऑयल कम है तो वो ना उसमें फफूंद लग जाएगा, फंगस आ जाएगा, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आएगा. और जितना पूरा ऑयल से ढका होगा बराबर तो वो ऑयल के कारण एयर के कांटेक्ट में आएगा. उसको में माइक्रोब्स क्या करेंगे, माइक्रोब्स उसमें अपने नंबर से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, माइक्रोब्स उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा. Vinegar helps in the preservation as bacteria cannot live in a acidic environment. And as we know that acidic condition में acidic medium होगा, environment होगा तो वहाँ पे microbes ग्रो नहीं करते. इसलिए acidic acid या vinegar जो है, सिरका जो है या vinegar क्या करता है, वो मीडियम को acidic बना देता है. Vegetables, fruits, fishes and meat are often preserved by this methods. उसके बाद में heat and cold method, जिसमें अपना दूध को जैसे पॉइस्चराइजेशन मेथड में गर्म करते हैं, या फिर कोल्ड स्टोरेज है जैसे लाइक फ्रीज है ना, डीप फ्रीज कर लेते हैं या फ्रीजिंग के द्वारा. सो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. सो बॉइलिंग kills most of the everybody know that just like ये कहते हैं ना कि वाटर को बॉयल करके पीना चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग से जर्म्स जो है वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं. सो सिमिलरली द फूड इज रेफ्रिजरेटेड as microbes cannot grow and multiply easily in a low temperature. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from the harmful microbes. In the pasteurization, the milk is heated to about 70 degrees Celsius for 30 to 15 to 30 seconds. यानी पास्चराइजेशन में क्या करते हैं, घर पे भी जैसे ना दूध को ना गर्म बार बार 2-3 टाइम जो है डे में मिल्क को ना दूध को गर्म करके रखते हैं या फिर फ्रीज में रखते हैं. तो फ्रीज में रखना इट मीन्स वो तो कोल्ड स्टोरेज हो गया ना, कोल्ड ट्रीटमेंट हो गया. बट हॉट स्टोरेज में क्या करते हैं, उसको 70 या 75 डिग्री सेल्सियस पे ना 15 to 30 सेकेंड्स के लिए गर्म करते हैं, उबालते हैं और फिर उसको रखते तो वो दूध खराब नहीं होगा, फटता नहीं है. तो ये उसका एग्जाम्पल है कि pasteurization का. So this method is developed by the British pasteurers. Okay, that's why this method is called the pasteurization. Okay. So by doing so it prevents the growth of microbes. ऐसा बार बार गर्म करने से या ठंडा फ्रीज में रखने से क्या होता है, उसमें माइक्रोब्स, जर्म्स जो है, बैक्टीरिया, वायरस वो ग्रो नहीं करते. तो वो ग्रो नहीं करेंगे तो हमारा फूड मटेरियल क्या रहेगा, सेफ रहेगा, वो स्वस्थ हेल्थी रहेगा. ओके. We commonly the pasteurized milk, butter and other dairy product. Refrigeration and freezing of food is also adopted these days to prevent the spoilage of the food. और आज
ओके, टाइम सबसे पाइस्चराइजेशन मेथड और कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड जो रेफ्रिजरेशन है या रेफ्रिजरेटर है, ये मेथड से बाय विच वी कैन प्रिवेंट food by spoilage by the growth of microbes. Next method is the sterilization and airtight packings. एयरटाइट पैकिंग्स यानी एयरटाइट कंटेनर्स होते हैं, डिब्बा बंद जो फूड होता है वो कभी स्पॉइल नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो बिल्कुल पैक होता है, टाइट होता है, इट्स नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द एयर. सो दैट इज ऑल्सो अ मेथड बाय विच वी कैन प्रिवेंट द फूड. स्टेरिलाइजेशन यानी किसी भी मेथड से स्टेरिलाइज करना, जस्ट लाइक वी कैन स्टेरिलाइज आवर हैंड्स विद दिस सैनिटाइजर. उसको सैनिटाइज करना सैनिटाइजर से. डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो अपने जो भी टूल्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, है ना. सो द माइक्रोब्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन एयर सप्लाई इज कट ऑफ. यानी इफ किसी भी फूड मटेरियल से यदि एयर का जो कॉन्टेक्ट कर ले, चाहे वो एयर टाइट कंटेनर में हो या फिर स्टेरिलाइज करके हो या फिर डिसइंफेक्ट करके हो, तो क्या होगा, उस पर माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि जर्म्स आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, एयर के थ्रू ही आते हैं. दैट कम्स थ्रू द वाटर एयर. सो एयर इज अ मेन एजेंट देयर, सो वी शुड stop the supply of air. We cut the supply of that air. Nowadays, many products such as the dates, pulses, spices, dry fruits and vegetables are sold in the sealed airtight packets that prevent the attack of microbes. तो आज तो आपने देखा होगा बिल्कुल मार्केट में, है ना, क्या होता है, बिल्कुल एयरटाइट कंटेनर में, एयरटाइट डिब्बे में या फिर पैकेट्स में या फिर पाउच में वो आपको फूड मटेरियल्स मिलते हैं, ताकि क्या हो, वो एयर के कांटेक्ट में नहीं हो, वो सेफ रहे, लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रह सके ना, खराब ना हो. इन फैक्ट एयर इज टेकन आउट ऑफ द पैकेट्स एंड द वैक्यूम इज क्रिएटेड इन दैट. और उसके साथ साथ क्या होगा, उसमें से एयर को हटा देते बिल्कुल बाय द यूजिंग द एयर दिस वैक्यूम पंप. एयर इज टोटली रिमूव्ड फ्रॉम दैट पैकेट्स एंड देन दैट इज stored. Sterilization by heat and radiations by ultraviolet rays is done by canning vegetables, jams, fish and meat. Sterilization भी हीट के थ्रू भी होता है और रेडिएशन के थ्रू भी होता है और डिफरेंट केमिकल डिसइंफेक्ट भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको स्टेरिलाइज कर लेते हैं. कैनिंग जैसे है फिश, मीट, इन सब को ना बंद फिश को पैकेट में, तो वो स्टेरिलाइज करके उसको पैकेट्स में रखते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए वो क्या रहे, खराब नहीं हो, वो ऐसे कैसे रहे, उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कैन यूज दैट फूड प्रोडक्ट. अदरवाइज वी आर सफरिंग फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल इफ वी डू नॉट डेवलप दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स. Then sunlight is like common method. This sunlight is a very common method among the people, mostly among the farmer or in the rural areas. हमारे गाँवों में रूरल एरियाज में या फार्मर्स इस मेथड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी जब फसल पक के तैयार हो जाती है, वो जब घर पे लाते हैं तो वो ना फॉर द 1 वीक और 10 और 15 डेज बिल्कुल खुले में ना धूप में अपने अनाज को सूखने के लिए देते हैं, ताकि उसमें से वॉट एवर द मॉइस्चर्स कंटेंट दैट रेन्स दैट बी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब completely dry by the sunlight. Okay. Food items are dried in order to remove the water or the moistures from them, as moistures support the growth of microorganisms. As I told you that पहले भी मैंने बार बार डिस्कस कर रहा हूँ एक चीज़ की, यदि moistures होगा किसी भी चीज़ में, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो या फिर दूसरे आइटम्स हो या अनाज हो, सब्जियाँ हो, कुछ भी हो, if there will be the chance of having some moistures in any consumable items, eatable consumable items, what that item should be must be infected with the germs because of presence of that moistures. तो सबका जो रीजन है क्या, moistures है, तो moistures को अपने को हटाना बहुत जरूरी है. Okay? Therefore this method is used. This method is called water dehydration. Dehydration means water to remove the moistures of the water, and rehydration means the recharge of water. ज़्यादा गर्मियों में लू इधर घूमते तो हमारी बॉडी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो वापस ORS या और सॉल्यूशन बन लेते हैं, तो वो रिहाइड्रेशन कहलाता है. सो ग्रेन्स एंड द पल्सेस आर द फर्स्ट ड्राइड इन द सन टू रिमूव द मॉइस्चर्स. पापड़, पोटैटो चिप्स, मीट, फिश एंड मेथी लीव्स आर प्रिजर्व बाय द
डिहाइड्रेशन, ये कुछ फूड आइटम्स फूड मटेरियल्स है जिसको अपन डिहाइड्रेशन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. वी कैन यूज दिस फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड बाय दिस सन डाइंग मेथड बाय प्रिजर्विंग दिस material food items by this sun dyeing. Also we can preserve food material by the heat and cold treatment, by the refrigerator cold storage, by the pasteurization method. We can preserve them by using soil and vinegar. We can use this soaking methods mixed with the sugars which inhibits the growth of microbes and the materials available for the long time period for us. Then this sorting and also water remove the extra water from the food materials and it makes usable that food material for the long time period. So these are some methods, chemical methods in that we use this sodium benzoates and this sodium metabisulfate. So these are some methods by which we can preserve the food materials and for the long time we can use that food product and we can sort out or resolve the problem of this food storing or food shortage. Okay, so I hope you have already understood all these things about this today's class. If you have any doubt in your mind, you are free to ask me any time. Okay, so once again, thanks a lot for allowing me to watch this my class, and please everybody come to know that in the month of July we have in the first or maybe second week we have our BT first exam, so prepare better for that. Okay, thank you, have a nice day.